Good morning students. Today we are going to discuss our first lesson of 12th class from the book Flamingo. The name of the lesson is the last lesson. This is the story of a village which come in the dominance of the French armies. Here we will discuss about the thing, how a normal day became the school's last day, what the thing has happened on the particular day. So the character of this story, there are two main characters of this story. First one is the narrator who narrates the story towards us, and second is Mr. M. Hamel, who was the teacher of that school. So the story begins with the narrator when he was going towards the school, and he was in the fear that when he reached to the school, he became late and he was get scolded by Mr. M. Hamel. जो नरेटर था वो स्कूल जा रहा था, वो लेट हो चुका था और उसको इस बात का डर था कि मिस्टर M. Hamel जो है वो स्कूल पहुंचते ही उसकी डांट लगाएंगे. In the way there was a kind of natural scenery there. जंगल था वहाँ पे, उसके किनारे पक्षी चहचहा रहे थे. जो आरा मशीन थी 100 चेन, वो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और सैनिकों के बूट की आवाज़ आ रही थी. और मैं बहुत तेज़ी से स्कूल की तरफ भागा बिकॉज मैं पहले से लेट हो चुका था, ये नरेटर पहले से लेट हो चुका था. और आज जो स्पेशल था वो ये था कि आज मिस्टर M. Hamel वो एक पार्टिसिपल से रिलेटेड नियम सुनने जा रहे थे. सेकेंड पैराग्राफ में आइए. जब मैं when I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had came from there. In the way to school, जो स्कूल के रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड इस तरह का एक लगा रहता था. All the news has been published on that particular board. सारी न्यूज़ उस बोर्ड पे ही पब्लिश होती थी. तो पिछले साल से 2 साल से जितनी भी खराब, all the bad news were came from that particular board, उस बोर्ड से ही आई थी. और आज के दिन भी वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी. Then as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub, you will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. जब मैं वहाँ से जा रहा था तो जो कस्बे के जो लोग थे, जिन्हें यूजुअली आप भी अपने आसपास के लोगों को जानते हैं, वो भी जानता था. उसमें कौन कौन से लोग थे? ब्लैक स्मिथ था, वॉचर था, तो लोहार वगैरह जो थे वो अपने सामानों के साथ खड़े हुए थे वहाँ. और जब मैं भागने लगा तो उन्होंने मुझसे तेज़ी से चिल्ला के कहा कि भागो मत, देयर इज़ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन रीच योर स्कूल इन टाइम बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम आराम से पहुँच सकते हो. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मुझे उस समय लगा कि ये मेरा मजाक बना रहा है. मुझे उस समय लगा कि ये मेरा मजाक बना रहा है, बट एक्चुअल में वो मजाक नहीं था, वो सीरियसली बोल रहा है. अंत में मैं वो गार्डन में पहुंच गया मिस्टर M. Hamel के. अब देखिए आगे. अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, सॉरी ये पैराग्राफ 3 पे आइए. यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of the desk, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. Normally at that time, at the starting of the time of school, there are so many hustle and bustle in the school ground. You can hear various kinds of sound like reciting lessons, the ruler of the teacher scratching off on the tables. तो जब स्कूल इस समय सुबह हम जाते हैं तो काफ़ी सारी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं. जैसे कि आवाज़ हमें सुनने को मिल जाती है बच्चों के चिल्लाने की, दौड़ने की, किताबें कॉपी खोलने की. इसके अलावा बच्चे जो लेसन पढ़ रहे होते हैं उनकी, और इतना शोर होता है कि हमें अपने कान को कवर करना पड़ता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए. बैटल. अब आगे देखिए. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. लेकिन आज के दिन सब कुछ शांत पड़ा हुआ था. आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning.
मुझे लग रहा था या मैं चाहता था कि मैं अपने डेस्क तक बिना किसी इनविजिबल होके पहुंचूं, कोई मुझे देख ना पाए। बट आज के दिन इतना ही शांत था जितना कि संडे की मॉर्निंग हुआ करता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर एंड एम हेमन वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे और मिस्टर एम हेमन भी अपनी जगह खड़े थे अपने मोटे आयरन रूलर के साथ, अपने हाथ के बगल में दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोल के सबके सामने अंदर जाना पड़ता था, जाना पड़ेगा। ये उस समय की सिचुएशन थी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, बट नथिंग हैपेंड। एम हेमन सॉ मी एंड सेड very kindly, go to your place quickly little friends, we were beginning without you। तो जो बात कही मिस्टर एम हेमन ने जब मुझे देखा, यानी कि जब नरेटर को देखा, तो उन्होंने ना ही स्कोल्ड किया ना ही किसी तरह की और कोई बात की। जो कहा उन्होंने वो मेरे लिए क्वाइट स्ट्रेंज था। उन्होंने कहा कि गो एंड सिट ऑन योर डेस्क, वी वर अबाउट टू बिगिन विदाउट यू। उन्होंने मुझसे कहा कि जाइए आप अपनी सीट पर बैठ जाइए जाके, और अगर तुम नहीं आते तो हम तुम्हारे बगैर ही शुरू कर देते। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered. Embroidered means होता है जो हम किसी चीज़ को काढ़ देते हैं, क्रोशिया वगैरह से। So as soon as he allowed me to sit on the particular chair, I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं उछला कूदा और अपनी जगह पे बैठ गया। Not till then, उस समय तक when I got a little over my fright, जब मैंने अपने डर पे थोड़ा बहुत काबू पा लिया, तब मैंने देखा कि जो हमारे टीचर थे वो ग्रीन कोट, अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट को पहने हुए थे, अपनी फ्रिल्ड शर्ट मतलब होता है थोड़ा सा उसमें कुछ लटका सा रहना, उसको फ्रिल्ड कहते हैं, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसमें थोड़ी सी जो काली टोपी थी जिसमें कढ़ाई हो रखी थी। सबके सब कढ़ाई वाले थे। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंसेप्शन एंड प्राइज डे। वो इस ड्रेस को कभी नहीं पहनते थे, केवल प्राइज डेज पे ही पहना करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty। जो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया वो चीज़ ये थी कि जो पीछे की जो सीटें होती थी, नॉर्मली दे आर गेट एम्प्टी, वो कैसी रहती थी, खाली रहती थी, बट नाउ दे ऑल आर फिल्ड। अब ये नए स्टूडेंट कौन थे इनका पता लगाइए। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स, वहाँ पर विलेज के पीपल लोग बैठे हुए थे, विलेज के लोग बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसल विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। वहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ था? हाउसर बैठे हुए थे अपनी तिकोनी टोपी के साथ, मेयर बैठे हुए थे जो फॉर्मर थे, पोस्टमैन बैठे हुए थे जो फॉर्मर थे, और इसके अलावा भी और कुछ लोग बैठे हुए थे। Everybody looked sad, हर कोई ऐसे दिख रहा था जैसे कि बहुत उदास है। And Hauser had brought an old primer thumb at his edge। जो ओल्ड हाउसर था पुरानी सी किताब लेके आया था और उसको उसने अपने घुटने पे रख के खोला। With his great spectacles like across the page, उसने अपना चश्मा लगाया और उसको उस पर नज़र डाली। तो अब यहाँ तक में हम कितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए आगे आने वाले टेस्ट में। जो पहला क्वेश्चन इससे ये आपका होमवर्क भी है, यू हैव टू डू दिस इन योर फेयर नोटबुक। तो जो पहला क्वेश्चन आपका इसमें से निकलेगा, पहला क्वेश्चन होगा दैट इज, जैसे कि आपका ये है आई स्टार्टेड, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा? व्हाट वर the condition of Hauser when he was going to school।
सेकेंड क्वेश्चन जो रेज हो सकता है वो ये है कि what was एम हैमिल, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, दूसरा क्वेश्चन इसके लिए ये थोड़ा सा माइक की वजह से इधर उधर होना पड़ता है, सो डोंट माइंड दैट। क्वेश्चन नंबर